Okay. So in the last class, we just started chapter 16. Those who are new, those जिनका पहला class है, और chapter 16 में we have started discussing offenses against body. वो सारे offense जो ultimately body को affect करते हैं. We have seen the examples कि इस chapter में कौन-कौन से offenses देखने वाले हैं जो body को affect करता है. तो उसमें ये सारा basically offenses होंगे. Be it culpable homicide, be it murder, be it dowry death, या abatement of suicide or abatement. Then third, wrongful discipline. ये सारे offenses which basically affects human body. ये हम लोग स्टार्ट. And हम लोगों ने ये भी देखा कि what we basically mean homicide. तो homicide का जो distinction है, that is a lawful homicide and unlawful homicide. Somebody can please explain. Can somebody explain what is lawful and unlawful? थोड़ा सा रिवाइज हो जाए. Somebody please explain lawful and unlawful. थोड़ा सा illustrate करो इसे. नहीं हो. हाँ बबली. Explain this lawful and unlawful. Sir, in cases of excusable homicide or justifiable homicide, which falls in the general exceptions, it will be lawful. Okay. Unlawful में क्या क्या देखते हैं तो unlawful homicide. Sir, which is punishable, culpable homicide. Culpable homicide होगा, murder होगा उसमें, Yes, sir. dowry death होगा. These are punishable. Culpable का मतलब हमको कल बताया. The meaning of culpable. Meaning of culpable is punishable. ऐसे homicide जो punishable है, there are certain homicides which are not punishable. जो भी punishable नहीं, वो सब तो हम देखेंगे. Importantly, we have started the first topic of chapter 16. Generally, आप murder समझते हो. Voice break हो रहा है, proper नहीं आ रहा है. Yes sir, yes sir. Yes sir, हो रहा है sir break. सही है. Just Okay, fine. आवाज आ रही है सही से? Yes sir. आ रही है. Just a second. चलो. तो now see. So basically, we have to discuss the offense of murder, the fascinating chapter in the IPC, in the criminal law, है ना? तो murder तो basically पढ़ना ही था. लेकिन before going into the detail of murder, which is defined under section 300, हम लोग को उसका जो genus है, जो कि कल भी हम क्लास में बताएं, that is culpable homicide. ये समझना जरूरी था कि what amounts to culpable homicide. Culpable homicide meaning thereby of जिसमें हम कहते हैं homicide means killing of a human by a human which is punishable. Simple इसका ये मतलब होता है. That is the ordinary meaning of culpable homicide. लेकिन हमको section 299 रेफर करना पड़ेगा. तो जितने भी केसेस में ऐसे समझो आप सिंपली इन ऑर्डिनरी सेंस, जितने भी केस में आप देखते हो कि डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अ ह्यूमन बीइंग, वो जनरली कल्पेबल होमिसाइड का केस होता है. नाउ जनरली लोग क्या समझते हैं कि मर्डर हुआ है, कि दिस इज द केस ऑफ मर्डर. Ordinary people perceive this is the case of murder, but as a law student you have to distinguish what is murder, what is culpable homicide, what is culpable homicide not amounting to murder.
सारे में डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा। और ये क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो 3 कैटेगरी है जो कि हम कल चार्ट में बताए थे, उन सारे कैटेगरी में जो पनिशमेंट है वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज द केस ऑफ मर्डर, अगर सिंपल केस ऑफ मर्डर है, वी नो द पनिशमेंट इज थ्रू 302, और पनिशमेंट 302 में इफ यू सी डेथ पेनाल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसको आप मर्डर कहते हो। एक दूसरा कैटेगरी आएगा दैट इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ऐसे कल्पेबल होमिसाइड जो मर्डर नहीं होती, तो हम लोग देखेंगे उसमें, उसके लिए पनिशमेंट 304 में। और 304 का 2 पार्ट है, पहला पार्ट इंटेंशन का, दूसरा पार्ट नॉलेज का। अगर एक्ट इंटेंशन वाले में फॉल करता है तो इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और 10 साल है। 10 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिल सकती है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और दूसरा जो कैटेगरी है, अगर वो एक्ट नॉलेज के साथ किया गया है तो उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 10 इयर्स है और फाइन, मिनिमम पनिशमेंट फाइन है, यानी फाइन भी दिया सकता है। ये तो हम लोग देख लिए। अब इन सब्सटेंस हम लोग को डिस्कस करना है कि मान लो कि किसी केस में किसी ह्यूमन बीइंग की डेथ हुई एंड इट हैज बीन काउज्ड बाय एनी ह्यूमन बीइंग, हाउ विल यू एनालाइज कि इसमें 302 फॉल करेगा, ये 304 के पार्ट 1 में फॉल करेगा कि 30 पार्ट 4 के पार्ट 2 में फॉल करेगा। सब में पनिशमेंट अलग है। ये आपका स्किल और आपका क्राफ्टमैनशिप है टू एग्जामिन एंड डिस्टिंग्विश द alleged act, ये हमको देखना है। तो कल हम स्टार्ट क्या किए थे, वी हैव टू डिस्कस ईच एंड एवरी टर्म्स गिवन अंडर सेक्शन 299, ये सब डिस्कस करना है। उससे पहले एक चीज क्लियर कर दूं जो हम लोग डिस्कस किए थे, द मेंस रिया पार्ट मेंस रिया में as far as culpable homicide is concerned या murder is concerned, culpable homicide मेंस रिया का जो फैसेट है, डिफरेंट फैसेट है, वो हम पढ़े थे। मेंस रिया मतलब मेंस रिया इंटेंशन के फॉर्म में हो सकता है, मेंस रिया नॉलेज के फॉर्म में हो सकता है, और मेंस रिया नेग्लिजेंस और रैशनेस के फॉर्म में हो सकता है। तो as far as this section 299 and section 300 is concerned, we are only concerned with these 2 form of mens rea, that is intention and knowledge. आप में से ही कोई बताएगा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या डिस्टिंक्शन समझा इंटेंशन और नॉलेज में? एनीवन? प्रिसाइज डेफिनेशन चाहिए हमको या प्रिसाइज नॉलेज चाहिए? अनुभूति? Yes, sir. Intention, that means there should be forcibility of an offense plus desire to do that offense. Whereas knowledge, we have the awareness of the consequences. Like we can foresee the consequences in knowledge. ठीक। अच्छा, जो लोग भी जैसा कि इंटेंशन मीन्स फोर्सिबिलिटी प्लस डिजायर, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द डिजायर। अगर कोई व्यक्ति किसी डिजायर से कोई एक्ट करता है, जैसे अगर किसी के बोतल में आप पॉइजन डालते हो, डेडली पॉइजन, दैट एक्ट इटसेल्फ क्लियरली सेज कि आपका डिजायर क्या है। सिंपली डिजायर इज टू काउज डेथ। इसी तरीके से अगर किसी को पंखे से आप लटका देते हो रस्सी के थ्रू, दैट बेसिकली ट्रांसफायर कि आपका डिजायर है डेथ काउज करना। समझ रहे हो बात? तो ये दोनों जो फॉर्म ऑफ मेंस रिया है, इसमें एकदम क्लियर डिस्टिंक्शन आना चाहिए इन व्हाट इज इंटेंशन एंड व्हाट इज नॉलेज। नाउ थोड़ा सा एक और टास्क दे रहे हैं, गिव मी वन एग्जांपल। पूरे क्लास को एक एग्जांपल को एक व्यक्ति आपने से पूछो, जिससे ये समझ जाए कि सर दिस एग्जांपल इज द एग्जांपल ऑफ इंटेंशन एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉलेज। थोड़ा सोच के बताओ तो कि सर ये एग्जांपल नॉलेज का होगा, ये एग्जांपल इंटेंशन का होगा। एनीवन? कौन ट्राई करेगा? साक्षी? सर आई कैन ट्राई। जैसे कि सर एक एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पे इंटेंशन है, जैसे कि कोई इंसान है, उसने किसी पर्टिकुलर इंसान के खाने में जहर मिला दिया, तो सर यहाँ पे दोनों चीज दिख रहा है कि उसको इंटेंशन भी है और उसको नॉलेज भी है कि वहाँ पे अगर वो खाता है तो उसके नहीं, अलग अलग एग्जांपल लिखना है साक्षी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लियर इंटेंशन, क्योंकि यहाँ पर डिजायर शो हो रहा है, डिजायर और शो हो रहा है कि डिजायर इज टू काउज डेथ। सेपरेट एग्जांपल ऑफ नॉलेज।
सर नॉलेज का बता रही हूँ मैं। तो सर जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई इंसान है, जैसे कि मैं हूँ और मैं बहुत लाइक आई एम वेरी पुअर और मेरे पास पैसे नहीं है कुछ भी चीज़ के लिए। सो व्हाट आई डिसाइड कि मैं अपने ठीक है आई डाई और मैं अपने पूरे फैमिली को मार दूंगी, क्योंकि फिर इससे क्या होगा कि मतलब हमको जो भी प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हम लोग को ऐसा वो हेवन मिल जाएगा, और जो हमको यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है वो हमको प्रॉब्लम नहीं होगा, और उसकी वजह से मैं कुएं में कूद जाती हूँ या फिर कुछ ऐसा कर देती हूँ। तो सर यहाँ पे इंटेंशन नहीं है, बट नॉलेज है उसको कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसके बाद सबकी डेथ होने वाली है। ठीक ठीक। स्मृति, एनीथिंग दैट यू वांट टू से? यस स्मृति। चलो देखो, वो तो ठीक है, दोनों चीज इंटेंशन, नॉलेज, और जैसे जैसे ये डिस्कशन आगे बढ़ेगा वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब इसमें समझो हम लोग क्या समझने वाले थे। द वेरी फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 299 कहता क्या है, एंड यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली कि व्हाट दिस बेसिकली सेज। कल हम लोग इसको स्टार्ट किए। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्रिमिनल लॉ में दैट यू हैव टू प्रूव द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ एन ऑफेंस या ऑफ एन क्राइम, जिसको हम लोग एक्टस रियस कहते हैं प्लस मेंस rea कहते हैं। तो हर एक एक्ट में वो एक्टस रियस होना चाहिए और मेंस rea होना चाहिए। when you are reading section 299, the very first clause जो कहता है whoever causes death by doing an act, this particular expression reflects the actus reus। सबसे पहले ये प्रूव करना पड़ेगा actus reus। One actus reus is that death has to be caused। ऐसा नहीं हुआ कि आपने गोली चलाई और बंदा बच गया, बंदा बच गया तो डेथ ही नहीं हुआ। और इफ डेथ हैज नॉट बीन काउज्ड, एक्टस रियस प्रूव नहीं हुआ, मर्डर के लिए प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते या कल्पेबल होमिसाइड के लिए प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। तो एक ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है whoever causes death by doing an act, तो आप डेथ काउज करते हो by doing an act, तो एक्टस रिया ये प्रूव होना चाहिए। लेकिन कल जो हम स्टार्ट किए थे दिस एक्सप्रेशन whoever causes death, इसका मतलब क्या होता है? Whoever causes death means you have to establish causal connection between the act of the accused and the death of the victim। यानी आपको सिंपली ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि जो विक्टिम की डेथ हुई है या डिसीज की डेथ हुई है, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ accused एंड नॉट अदरवाइज। किसी और कारण से नहीं हुआ है सर, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ द एक्यूज्ड। यानी सिंपली अगर बोलें कि किसी को ब्लैंक रेंज से आप गोली मारते हैं उसके सिर पर, बहुत क्लियर एग्जांपल है जहां पर आप कहोगे सर ये जो रिलेशन है ये डायरेक्ट है, बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ द एक्यूज्ड यहां पर डेथ होता है। तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पॉइजन डाल के किसी को मारते हो, स्ट्रैंगुलेट करके किसी को मारते हो, बहुत क्लियर लिंक एस्टैब्लिश है दैट इट इज बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ एक्यूज्ड। लेकिन क्या आपके पास यानी कोर्ट के पास इतने ही सिंपल केस आते हैं? नहीं, इतने सिंपल केस नहीं आते। इसलिए ये जो टर्म है ये हमको अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा और हमको ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कॉजल कनेक्शन किस किस के बीच, एक्ट ऑफ द एक्यूज्ड एंड द डेथ काउज्ड। और ये कनेक्शन कैसा होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट सेज if this connection cannot be indirect and cannot be remote। indirect नहीं होना चाहिए, remote नहीं होना चाहिए, direct और distinct होना चाहिए। तो causal connection establish करना होगा हमको कोर्ट में सबसे पहले, फिर हम मेंस rea पर आएंगे कि सर इंटेंशन था कि नॉलेज था, कौन सा फॉर्म ऑफ मेंस rea था तो बाद में आएंगे। पहले हमको ये एक्टस रियस प्रूव करना पड़ेगा और उस एक्टस रियस में ये प्रूव करना पड़ेगा कि डेथ और एक्यूज्ड के एक्ट में डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट नेक्सस। ठीक, अब देखो कल कुछ एग्जांपल देखे थे, सम ऑफ द केस लॉ वी हैव रेफर्ड, उसमें थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। द केस व्हिच वी हैव रेफर्ड, एक दो एग्जांपल तो हम लोग देख लेते। दिस केस विजय भाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र and Joginder Singh versus State of Punjab, these two are the glaring example कि causal connection कैसे establish होता है।
ये वाला हम जो एग्जांपल देखे थे जिसमें एक बंदा जिसको एक्यूज पीछा कर रहा था, इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ ही जंप्ड इनटू वेल, कुआं में कूद जाता है। वहां पर एक्यूज कहता है कि सर द डेथ हैज नॉट बीन कॉज्ड बाय माय एक्ट, मेरी एक्ट के कारण नहीं हुआ है। पूछ रहा है कि डेथ किस कारण से हुआ है? सर डेथ ड्राउनिंग से हुई है, यानी डूबने से हुई है, कुआं में कूदने से हुई है। तो ऐसे जब केस आएंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि ये रिलेशनशिप इन दोनों चीजों में डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। कल हम लोग डिस्कस किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि प्रोसिक्यूशन फेल करती है प्रूव करने में कि एक्यूज के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जहां पर आप अगर प्रूफ कर देते दैट एक्यूज्ड वाज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू जंप इनटू द वेल, तभी वहां पर हम कहते हैं कि इसी एक्ट के कारण वो होता है। जैसे फॉर द एग्जांपल, लेट्स सपोज कि किसी रूफ पर आप बैठे हुए हो, लेट्स सपोज फर्स्ट और सेकंड माले पर या छत पर, आपको सडनली 4-5 एक्यूज आते हैं एंड दे स्टार्टेड असॉल्टिंग यू। उनके पास डेडली वेपन होता है, तो आप देखते हो कि कोई और रास्ता नहीं है, देयर आर नो अदर वे। तो आप क्या करते हो, उस दूसरे तीसरे चौथे माले से आप कूद जाते हो। वहां पर ये क्लियर एस्टैब्लिश होगा कि इसके पास अपने जान बचाने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं था, दैट इज व्हाई ही जंप्ड फ्रॉम देयर। वहां पर आप कहोगे सर इट इज बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ द एक्यूज्ड व्हिच इंपेल्ड हिम टू जंप फ्रॉम द रूफ। ठीक, तो वहां तो डायरेक्ट हम लिंक में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो कॉजल कनेक्शन यहां पर देखिए। एक और केस हमने देखा जहां पर सिंपली दिस गर्ल, इसका जो रिश्ता था वो रिजेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट डाउरी एंड शी गॉट डिप्रेस्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड। आउट ऑफ दिस वो अल्टीमेटली सुसाइड कर लेती है बाय पोरिंग केरोसिन, अपने शरीर पर केरोसिन छिड़क करके आग लगा लेती है। तो यहाँ पर भी देखा जाता है कि क्या एक्यूज का रिजेक्ट करना और अरुणा का सुसाइड करना, क्या इन दोनों में डायरेक्ट और डिस्टिंक्ट लिंक है? सुप्रीम कोर्ट अगेन सेड कि ये जो लिंक है दिस इज रिमोट पॉसिबिलिटी, इनडायरेक्टली, इट कैन नॉट बी सेड डायरेक्ट और डिस्टिंक्ट। ठीक, ये कुछ एग्जांपल हमने देखा था। नाउ फर्दर एक दो चीज और अच्छे से देखना है। नाउ देखो, इन सम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई करती है कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे व्हेन वी कैन से कि कॉजल कनेक्शन नहीं है विक्टिम के डेथ में और एक्यूज्ड के एक्ट ऑफ द एक्यूज्ड एंड डेथ ऑफ द विक्टिम। कब हम कहेंगे कि देयर इज नो कॉजल कनेक्शन? तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कुछ केसेस हैं which we wish to lay down। वही हम लोग देखने अभी डिस्कस करेंगे हम लोग कि ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहां ये लिंक एस्टैब्लिश नहीं होगा। पहला कहता है द कनेक्शन बिटवीन द एक्ट एंड द, एक सेकंड इसको बड़ा करते हैं, सी फर्स्ट सेज द कनेक्शन बिटवीन द एक्ट एंड द डेथ इज ऑब्स्क्योर। मतलब कि हमको पता ही नहीं है कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ डेथ, या डेथ का रीजन हिडन है, यानी काउज ऑफ डेथ इज नॉट नोन टू एनीवन, नीदर द कोर्ट नॉट टू द एनी अदर पर्सन। ठीक, पता नहीं। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है, ऐसे केसेस आते हैं कोर्ट के पास where you cannot say that what was the cause of death, आप कह नहीं सकते हो कि वहां पर डायरेक्ट कॉजल कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। आपको सर ऐसे कौन से केसेस हैं? ऐसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस आए सुप्रीम कोर्ट के पास where a death of, let's suppose कि somebody hits on the head of A और वो हॉस्पिटलाइज होता है। हॉस्पिटलाइज होने के बाद ना तो उसका पोस्टमार्टम हो पाता है ना कुछ और हो पाता है, और जैसे ही उसके घर पर आता है, घर पर जैसे इसके इनको लाया जाता है, कुछ दिन के बाद इनकी डेथ हो जाती है और इनका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होता है, अल्टीमेटली इनको बरी कर दिया जाता है। द बॉडी वाज बरी। नाउ इन दिस केस प्रोसिक्यूशन ट्राइज टू से कि सर इट वाज द एक्ट ऑफ द एक्यूज्ड व्हिच लेड टू द डेथ ऑफ द डेथ। लेकिन कोर्ट कहती है कि मेरे पास ऐसे कोई सबूत नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिसके थ्रू हम कहें कि नहीं, it is because of the act of the accused which resulted into death।
मीनिंग देयर बाय द काउज ऑफ डेथ इज हिडन और ऑब्सक्यूर। और कहते हैं कि कोई और भी कारण हो सकता है कि पॉसिबिलिटी बहुत सारा है, कुछ और कारण से भी हो सकता है उसकी डेथ हुई होगी, नॉट नेसेसरली इट हैज टू बी बाय द एक्ट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन। तो जब कॉज ऑफ डेथ इज नॉट नोन टू द पर्सन, वहां पर कॉजल कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होता है, एंड एक्यूज्ड कैन नॉट बी हेल्ड लायबल ईदर फॉर कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। सबसे पहले तो ऐसे सर्कमस्टांसेस अगर आपके पास आए, कोई भी फैक्चुअल सिचुएशन आए, क्वेश्चन आए, तो आपको डायरेक्ट ये रेफर करना है कि यहाँ पर जहां पर भी डेथ ऑब्सक्योर है, द कॉज ऑफ डेथ, यहाँ पर अब एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, पहला। दूसरा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, सोवा वर्सेस एम्परर का, काफी पुराना केस। अब इसमें क्या हुआ कि एक्यूज्ड हैज गिवन अ ब्लो ऑन द हेड ऑफ द डिसीज्ड, सिर पर मारता है, सिर पर, सिंगल ब्लो ऑन द हेड, डिसीज थोड़ा बीमार पड़ता है, और ग्रेजुअली धीरे धीरे डिसीज हिमसेल्फ डिड नॉट टेक इट सीरियसली। उसको लगा कि ठीक है, सिंपल चोट है, वो सीरियसली लेता नहीं है, ना हॉस्पिटल जाता है ना दिखाता है, काफी दिनों तक उसको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होते रहता है, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं जाता है। And as a result of this, he did not consult a doctor, he did not went to the hospital, and ultimately after 3 weeks he died. आप कहोगे क्या? आप कहोगे सर, it was the act of the accused who struck the deceased on the head, इसी कारण से तो ultimately death हुई है। तो क्या आपको लगता है यहाँ पर accused के act or death of the deceased, can you say there is direct and distinct link, और अब या आपको लगता है कि नहीं सर ये रिमोट पॉसिबल? एनीवन? विवेक? यस सर। सर इस वाले केस में डायरेक्ट और डिस्टिंक्ट रिलेशन आप प्रूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो उसमें वो है सेकंड वाला जो आपने पिछले स्लाइड में दिया था, उसमें सेकंड वाले में है कि अगर कोई ऑब्स्क्योर करता है या कोई किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन इन द पार्ट ऑफ द डिसीज्ड होता है, तो उस वाले केस में ऐसा डायरेक्ट रिलेशन कभी भी आप शो नहीं कर सकते और उसको डेथ के लिए नहीं कर सकते पनिश। ओके, साक्षी, व्हाट डू यू से? हेलो। यस सर। सर डायरेक्ट तो लिंक नहीं है यहाँ पे उसके, मतलब क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि अगर जो इस इंसान को चोट लगी थी और उसको प्रॉब्लम हुई थी, तो अगर वो हॉस्पिटल जाता तो मे बी कुड हैव सेव्ड हिज ओन लाइफ। सर उसमें उसका भी कुछ है, लाइक उसका कंट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं सर, नॉट एग्जैक्टली, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, लेकिन उसका डायरेक्ट लिंक तो नहीं है। ओके, अनुभूति, एनीथिंग एल्स? यस सर, डायरेक्ट नहीं है, लेकिन ये जो भी चीज उसको इंजरी हुई थी वो उसको कंट्रीब्यूट करता है, जो अल्टीमेटली डेथ कॉज हो गया। सो आई थिंक यस। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ सी, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पहला तो कहती कि व्हेन द रीजन और द कॉज ऑफ डेथ इज ऑब्स्क्योर, हिडन, नहीं पता चल रहा है, वहां पर एक्यूज को एट्रीब्यूट नहीं कह सकते, वहां पर नहीं कहोगे कि एक्यूज के एक्ट के कारण डेथ हुआ। दूसरा कहता है इफ देयर आर concurrent or contributory causes, meaning thereby contributory causes, any the act of the accused is not solely responsible because somebody else has also contributed. तो वहां पर आप देख रहे हो कि इस केस में क्या हुआ, डेफिनेटली हेड पर इंजरी हुई है, तो हेड पर इंजरी हुई है, हॉस्पिटल नहीं गए, दिखाए नहीं, तो उस कारण से अल्टीमेटली आप क्या देखते हो कि बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, दीज सर्कमस्टांसेस, उसकी डेथ हो जाती है। कोर्ट कहती है कि दीज आर कॉन्ट्रीब्यूटरी काउजेस। यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, आप कहोगे सर अगर ऐसा चीज है जहां तक कंट्रीब्यूशन की बात है, तो चलो सर थोड़ा ट्विस्ट करते हैं और फिर समझते हैं कि क्या मैकॉले इसी चीज को ही कंटेम्पलेट कर रहा था जब वो लिख रहा था, बेसिकली जो आईपीसी के 299 हम थे तो वो ड्राफ्ट कर रहे थे। इसको थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। लेट्स सपोज दिस मैन ए was shot by B. B ने A के स्टमक में यानी पेट में, एब्डोमेन में गोली मारी और एक दो गोली लगी, और गोली लगने के बाद क्या हुआ कि वो सडनली गिर पड़ा और एक्यूज भाग जाता है। आसपास के लोग दौड़े दौड़े आते हैं, उसको पकड़ते हैं, और वो बेसिकली रिमोट एरिया होता है, विलेज होता है,
वहां पर बहुत हॉस्पिटल, मतलब बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, तो बगल में डिस्पेंसरी होता है, उसमें जाते हैं। डिस्पेंसरी के पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो शायद उसके पेट से गोली निकाले या प्रॉपर ट्रीटमेंट, ठीक, फिर कोशिश करता है, थोड़ा और दूर जाता है, वहां पर भी देखता है कि नहीं, प्रॉपर जो हॉस्पिटल होना चाहिए जहां पर सारी फैसिलिटीज हो, ऑपरेशन थिएटर हो, ये सब होना चाहिए, नहीं था। तो इसी तरीके से एक उस एरिया के आसपास वो जाते जाते जाता है और नहीं मिलता है, और सडनली जब वो कोशिश करता है कि लेट्स सपोज कि हम लोग किसी गांव में हैं, अल्टीमेटली पटना जाना है ताकि पारस या किसी फोर्ट हॉस्पिटल में चले जाए, तो जब तक उस वो गाड़ी करते हैं ताकि वो पटना पहुंच पाए, तब तक उसकी डेथ हो जाती है। अब ये एक्यूज क्या कहते हैं? दिस एक्यूज सेज had the better medical facility been given to the victim, we would have saved the victim. हम इसको बचा लिए होते, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सर, मैंने तो गोली चलाई, ठीक है, अगर उसको अच्छे हॉस्पिटल में दिखाए होते तो शायद आप उसको सेव करते। क्या ये प्ली, क्योंकि ये थोड़ा अभी जो एग्जांपल डिस्कस किए हैं उससे थोड़ा कनेक्टेड, तो क्या ये प्ली एडमिसेबल है, कोर्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए इसको? और इस केस में क्या आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं सर ये सही तो बोल रहा है, फोर्ट में दिखा लिए होते, पारस में दिखा लिए होते या वेदांता में दिखा लिए होते तो बच गया होता? क्या ये एक्सेप्टेबल प्ली है? नहीं है तो क्यों नहीं है साक्षी? सर एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सर यहाँ पे जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस हैं डिफरेंट है पहले वाले केस से। जैसे कि पहले वाले केस में उसके पास सब कुछ मींस था, एक्सेसिबिलिटी था, उसने फिर भी नहीं वो गया, बट यहाँ पे सर सब उसने ट्राई किया, उसने जितना मतलब लेवल पे जो वो ट्राई कर सकता था, बट वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी ही नहीं थी, तो सर उसके ही इंजरी से उसकी डेथ हुई है। तो सर यहाँ पे मुझे नहीं लगता वो प्ली जो है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, विवेक? यस सर, इसमें सर कोई भी जिसका डेथ हो रहा है उसके साइड से कॉन्करेंट या कंट्रीब्यूटरी कॉजेज कुछ दिख नहीं रहा है, सो दैट्स व्हाई सर जैसे बोला साक्षी ने, प्लीज होना चाहिए सर। अब समझो इसको, मैकॉले को पता था जो ड्राफ्ट कर रहे थे कि ये ऐसा प्लीज सब लोग लिख आएंगे, जैसे आपका विदाउट, एवरीवन विल कम टू द कोर्ट ऑफ लॉ and will come up with this plea only. Sir, had the better medical facility been given to the accused, we would have saved the accused. So I am not only responsible but somebody else is also responsible. इस सिचुएशन को और इस प्ली को कंटेम्पलेट करते हुए पहले से वह प्रियंट कर लिए थे कि ऐसा कुछ होगा, दैट इज व्हाई उन्होंने एक्सप्लेनेशन टू ऐड किया। सबके पास बेयर एक्ट होगा, प्लीज रेफर एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 290, ताकि कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो आप कहोगे सर यहाँ भी तो कंट्रीब्यूशन है दूसरे साइड से, एंड वी कैन नॉट एट्रीब्यूट दिस लायबिलिटी ओनली टू द अक्यूज्ड। एक्सप्लेनेशन 2 एक बार खुद से देखें, फिर हम लोग आते हैं। एंड समबडी, अगर किसी के पास बेयर एक्ट हो, प्लीज रीड एक्सप्लेनेशन 2 फॉर द क्लास। Yes. Explanation 299. Where death is caused by bodily injury, the person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused the death, although resorting to the proper remedies and skilled treatment, the death might have prevented. Clear है? तो आप जब explanation 2 देखोगे, उसमें clearly लिखा हुआ है कि we will presume the death, we will presume that death has been caused, and we will not give heed to या give consideration to this plea that resorting to proper remedies and skillful treatment, the death might have been prevented. कभी अगर ये plea acceptable होता तो तब ये पेंडोरा बॉक्स खुल गया होता कोर्ट के सामने, और हमेशा एक्यूज आता और यही प्ली दे देता। इंडिया में खास करके रिमोटेस्ट एरिया में जो आगे क्राइम होते हैं सब में तो यही प्ली लेके आते। पटना अगर ले आए होते, उसको वेदांता में दिखा दिए होते, शायद वो बच गया होता। तो यहाँ पर एकदम थिन लाइन डिफरेंस है, उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। सेकेंड क्लॉज जो कॉजल कनेक्शन दिखाना है हमको, हेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंट्रीब्यूटरी, वो उसमें कंट्रीब्यूटरी नहीं था। तो जब भी ये पढ़ रहे हो आप, ऑल्सो रीड एक्सप्लेनेशन 2
so that you do not confuse with the factual circumstances या factual disputes। ये चीज समझ में आ गया। तो कोर्ट कहेगी कि दो जगह तीन में से दो हम लोग पढ़ लिए। कॉजल कनेक्शन पहला, अगर cause of death is hidden। second, if there is contributory or concurrent causes to the death। अब कह रहा है तीसरा क्या है, तो तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये बहुत बार होता है। तो तीसरा जो प्रिंसिपल है वो तो देखेंगे, पहले कुछ केस देख लेते हैं और केस देखने के बाद फिर देखेंगे कि इसमें बेसिकली हुआ क्या। देखो लेट्स सपोज इन अ सिचुएशन क्या होता है कि एक एक्यूज्ड बी को मारना चाहता है, ठीक, तो वो रिवॉल्वर लेके पीछा कर रहा है, बी का पीछा कर रहा है, इन अ लोनली प्लेस पीछा कर रहा है उसका, और वो क्या करता है, गोली पैर पे मारता है, सोचता है कि पहले उसको रोकें, बहुत पीछे से हमको भागना पड़ रहा है। तो लेट्स सपोज कि वो उसके पैर में गोली मारता है, ठीक, फिर भी वो चलता रहता है। फिर क्या करता है, ठीक है, पैर में गोली मारता है, मतलब बेसिकली पैर में गोली मारना चाहता है और थाई में गोली लग जाता है और क्रम्बल करते करते अल्टीमेटली वो कहीं लेट जाता है। और जैसे ही लेटता है वैसे ही उसके यहाँ पर उसके the big tree falls on the deceased and as the result of which this person died। अब यहाँ पर क्या होगा, ऐसा केस है, एक कुछ केस ऐसा आता है कि आप क्या कर रहे हो, आपने किसी को, एक एक्यूज ने किसी को गोली मारी, उसको लोग हॉस्पिटल ले जा रहे थे, गाड़ी से हॉस्पिटल ले जा रहे थे और एम्बुलेंस का बीच में एक्सीडेंट हो गया और जब एक्सीडेंट के बाद निकाला गया उसको विक्टिम को, डिसीज को, तो विक्टिम एक्चुअली विक्टिम की डेथ हो चुकी। ऐसे ऐसे केस में आपको केस मिलेंगे जहां पर डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखेगा, कुछ इंटरवेनिंग काउज दिखेंगे आपको, यानी देयर वाज सम इंटरवेनिंग काउज व्हिच आल्सो रिजल्टेड इन। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि आप पता नहीं कर पाओगे कि एक्चुअली में डेथ एक एक्ट ऑफ द एक्यूज से हुआ है वो कि उस इंटरवेनिंग काउज से हुआ है। तो हम उस केस में क्या करेंगे, कोर्ट कहती है, देखो कोर्ट ने एक फॉर्मूला निकाला कि अगर कोई इंटरवेनिंग काउज है तो उस केस में कैसे डिसाइड करोगे कि इंटरवेनिंग काउज से डेथ हुई है या एक्यूज के एक्ट से डेथ हुई। कोर्ट क्या कहता है, इफ द कनेक्शन इज ब्रोकन बाय इंटरवेंशन ऑफ सब्सिक्वेंट काउज, तब हम देखेंगे क्या, पूरे इंसिडेंट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। वी विल सी कि व्हाट वाज द प्राइमरी काउज एंड व्हाट वाज द सेकेंडरी काउज, व्हाट वाज द प्राइमरी काउज एंड व्हाट वाज द सेकेंडरी काउज। तो मान लो उसने पेट में 2 गोली मारी और एम्बुलेंस को लेके जा रहे थे वो, तब एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया और अल्टीमेटली डेथ हो जाता है। वी डोंट नो कि कैसे हुआ है। इस केस में आप बताओ कि प्राइमरी काउज क्या था, एक्सीडेंट होना या कहीं कहीं हमको देखना को सब्सटेंशियल रीजन इसको आप कहते हैं। एनीवन? What was the primary cause? आपने पेट में 2 गोली मारी है, हॉस्पिटल ले जा रहे थे और वहां पर एक्सीडेंट होता है। आपने किसी एक्यूज को एब्डोमेन में गोली मारी और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया और उसके बगल में सांप जा रहा था और सांप बाइट करता है उसको, सांप काटता है और सांप काटता है, सांप काटने से मौत हो जाती है। ऐसे ऐसे केस आएंगे आपके पास जहां पर वन एक्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, बहुत सारे कारण है, इंटरवेंशन है उसमें। तो उस इंटरवेंशन में आपको देखना होगा कि व्हाट वाज द प्राइमरी काउज एंड व्हाट वाज द सेकेंडरी काउज। इन दीज केसेस जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें से प्राइमरी काउज और सेकेंडरी काउज क्या होगा? एनीवन? सर वो जो शूट करता है दैट इज प्राइमरी, दैट इज द प्राइमरी काउज। एक्सीडेंट वाज नॉट द प्राइमरी काउज। नो सर। ठीक ठीक, एनीवन एल्स? सब यही एग्री करते हैं कि सर दैट वाज द प्राइमरी काउज। सुबेश? सांप काटता है तो वो ज्यादा
प्रोमिनेंट कॉज है कि मृत्यु हो जाए। और किसी के पेट में गोली मारते हैं वो प्राइमरी कॉज नहीं है सर लेकिन अल्टीमेटली डेथ तो एक्सीडेंट से हो रही है, तो प्राइमरी कॉज वो नहीं हो जाता। नहीं, इस केस में पता नहीं है आपको कि डेथ किससे हुई है। अगर ऐसे केसेस आएंगे तो अल्टीमेटली आपको देखना होगा प्राइमरी और सेकेंडरी कॉज क्या है। तो उसमें एक्सीडेंट प्राइमरी कॉज था कि उसका 2 गोली पेट में मारना प्राइमरी कॉज। सर कन्विक्शन के हिसाब से देखा जाए तो सर वो जैसे बीटन वही बाइट बाई स्नेक जो है वही प्राइमरी कॉज होना चाहिए सर। अच्छा ठीक, ये एक्सीडेंट वाले में चलो देखो, अगर ऐसे केसेस आएंगे तो कोर्ट से यस उसको जो चीज पहले हो उसको प्राइमरी बोलेंगे, ऐसा है क्या? नहीं ऐसा कुछ। सब्सटेंशियल रीजन डेथ का क्या है, दैट इज समथिंग वी हैव टू लुक इनटू। हमको देखना पड़ेगा सब्सटेंशियल कॉज क्या था। ऐसा नहीं देखना पड़ेगा पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। जो हो सकता है कि आप किसी को सिर्फ स्टैब किए हो और फिर एक्सीडेंट से मर गया, वो हो सकता है बच भी सकता था। हो सकता है किसी के सिर पर आप लाठी मारे और वो बेहोश हो गया और उठ नहीं पा रहा, सबकॉन्शियस स्टेट में चला गया, वो जा रहा था हॉस्पिटल और फिर उसकी डेथ हो गई। वी हैव टू सी दी सब्सटेंशियल कॉज ऑफ डेथ। एंड इसलिए तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग कि व्हाट वाज द प्राइमरी, इसको कहोगे आप सब्सटेंशियल कॉज और दूसरा सब्सिडियरी कॉज। ठीक है, एंसिलरी कॉज जिसको आप कह सकते हो, प्रिंसिपल कॉज और एंसिलरी कॉज। तो यहाँ पर खास करके ये जो पहला एग्जांपल है उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि अल्टीमेटली आप किसी के पेट में 2 गोली मारोगे इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर इट विल रिजल्ट इन टू डेथ। आप डॉक्टर से भी पूछोगे, जब ये सब केसेस आता है तो डॉक्टर अपना ओपिनियन देता है और जनरली जहां डॉक्टर ये कहता है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर इट विल रिजल्ट इन टू डेथ, यानी सामान्यतः यह डेथ हो जाता 2 गोली मारने से, तो अल्टीमेटली आप वहां पर डेथ। तो सब्सटेंशियल कॉज क्या है कि वो जो 2 गोली उसके पेट में लगी थी। तो इसका ये बेनिफिट फिर एक्यूज नहीं लेगा कि सर तो एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया था उस कारण से मरा है कि नहीं। तो अगर कोई इंटरवेनिंग कॉज आता है तो कॉजल कनेक्शन को देखने के लिए वी हैव टू सी द प्राइमरी और द सेकेंडरी कॉज। इफ द प्राइमरी कॉज कैन बी अटैच्ड टू द एक्यूज्ड विल बी रिस्पांसिबल। अगर प्राइमरी कॉज नहीं एक्यूज्ड है तो एक्यूज्ड रिस्पांसिबल नहीं होगा। मान लो थाई में गोली मारा और स्नेक काट लिया, तो थाई में गोली मारा तो बच भी सकता था, लेकिन इसके स्नेक के काटने से डेथ हुई, तो प्राइमरी कॉज नहीं होगा। इवन जब आप थाई में गोली मारते हो तो आपका इंटेंशन, डिजायर क्या रिफ्लेक्ट करता है? डिजायर कभी नहीं कह सकते हो कि इंटेंशन वाज टू कॉज डेथ। समझ में आई बात? तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट 299 जो हम लोग को डिस्कस करना है ये वाला, whoever causes death we have to establish causal connection, or causal connection has to be direct and distinct. It cannot be remote or it cannot be indirect. And court also said 3 things कि ऐसे 3 circumstances है, if in any case if these circumstances अगर आपके सामने आता है, we can say that there was no direct causal relation between death and the accused, act of the accused। समझ में आई बात? तो पहला पोर्शन तो समझ चुके हैं जो किसी भी मर्डर के केस में या कल्पेबल होमिसाइड के केस में एस्टैब्लिश करना होगा, चाहे ये केस 299 का हो, whether it is case of 300 that is of murder। सबसे पहले एस्टैब्लिश करना पड़ेगा आपको मेंस रिया, और मेंस रिया के लिए क्या एस्टैब्लिश करना पड़ेगा? इट इज द एक्ट ऑफ द एक्यूज्ड ओनली व्हिच रिजल्टेड इन टू डेथ। समझ में आई बात? फाइन, ये तो समझ गया। नाउ चलो फिर नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। देखो अब ये कहता है whoever causes death, death कैसे हो रहा है? by doing an act, by doing an act। अब ये कौन सा एक्ट है? वी डोंट नो, यानी एक्यूज की एक्ट से डेथ हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे बहुत डिफरेंट केसेस आए वेयर दे गॉट अपॉर्चुनिटी टू इंटरप्रेट द टर्म एक्ट कि दिस एक्ट ओनली इंक्लूड फिजिकल एक्ट, क्या ये मेंटल एक्ट भी इंक्लूड करेगा? वेदर दिस एक्ट आल्सो इंक्लूड सीरीज ऑफ एक्ट, क्या ये एक्ट इलीगल ओमिशन भी इंक्लूड करता है कि नहीं?
तो पहले तो आपने कॉजल कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया एक्यूज्ड के एक्ट में और डेथ में। सेकेंडली आपको देखना होगा कि डूइंग एन एक्ट, व्हिच एक्ट दैट एक्यूज्ड हैज डन। तो देखो सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट केसेस में एक्ट को इंटरप्रेट करता है। देखो, नाउ दिस एक्ट डज नॉट ओनली इंक्लूड फिजिकल एक्ट, सिर्फ फिजिकल एक्ट नहीं है इसमें। क्या क्या आएगा इसमें? इफ यू रीड द सेक्शन, कौन सा सेक्शन है जो एक्ट डिफाइन करता है? Which section of this IPC defines act? Anyone? कौन सा सेक्शन है? 33 33 सर 43 तो इलीगल लीगल 33 है। सर 333 है सर 33। चलो ठीक है, चलो 33 क्यों? सबसे पहले जो सिंपली हम लोग समझते हैं कि एक्ट ऑल्सो इंक्लूड इलीगल ओमिशन, नॉट ओनली ओमिशन बट इलीगल ओमिशन। यानी सिर्फ फिजिकल एक्ट नहीं हो सकता, यानी पॉजिटिव एक्ट मीनिंग देयर बाय स्ट्रैंगुलेशन, बाय शूटिंग समवन, बाय स्टैबिंग विद नाइफ या गिविंग अ एक्स ब्लो। जरूरी नहीं कि ये सब होनी चाहिए। यहां कहता है कि एक्ट ऑफ द एक्यूज्ड मे बी इलीगल ओमिशन आल्सो। अब इलीगल ओमिशन क्या है? आई थिंक ये अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इलीगल ओमिशन। डिफाइन करो, somebody please define illegal omission. It is not only omission, it is illegal omission. बताओ जल्दी। So when Illegal someone is disobeying his duty, बस legal duty. ये तो प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं होगा। एनीवन एल्स? Anyone else? Disobeying his duty. Which duty we are talking about? So I said legal duty which is bound to do and his यही तो- intentional disobeying. यही तो Yes, समझना sir, था। मैंने उसके बाद बोला था, आपको शायद आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आई। देखो सिंपली ओमिशन नहीं है, अब समझो। ओमिशन मींस वेयर यू सपोज्ड टू डू अ सर्टेन एक्ट बट यू डिड नॉट डू, यानी आपको करना था आपने नहीं किया। ओमिशन में तो वो भी एक्ट आएगा, आपके सामने कोई डूब रहा है, आप नहीं बचा रहे हो, दैट इज ओमिशन। बट क्या ये इलीगल ओमिशन है? नहीं। कोई लॉ ऐसा कहता है कि नहीं आपको बचाने की जरूरत है? नहीं कहता है। अगर कल को एक ऐसा एक्ट आ गया, जैसे मान लो कि रिसेंटली बिहार में आ गया, दिल्ली में भी है कि नहीं, अगर आप किसी को रोड एक्सीडेंट में देखते हो, इट इज योर लीगल ड्यूटी टू टेक दैट पेशेंट या टू टेक दैट पर्सन टू द हॉस्पिटल। अगर कल का ऐसा लॉ बन जाता है, नोट कर लो, विश्वास म्यूट कर लीजिए, कल का अगर एक्ट आ जाता है तो वहां कह सकते हैं इलीगल ओमिशन। तो इट इज नॉट ओनली ओमिशन, इट इज इलीगल ओमिशन। मतलब जहां आप पर एक लीगल ड्यूटी है एंड यू डिड नॉट परफॉर्म योर लीगल ड्यूटी। फॉर एग्जांपल, आप जेलर हो और जेलर की ये ड्यूटी है, जेल मैनुअल में पढ़ोगे और भी रूल्स पढ़ोगे कि वो सप्लाई करेगा फूड सारे प्रिजनर को। अगर मान लो इंटेंशनली जानबूझ करके किसी को मारने के लिए जो भी स्टाफ है, खुद और स्टाफ को मना कर देता है कि इसको फूड सप्लाई नहीं किया जाए, काफी दिनों तक फूड सप्लाई नहीं होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच दिस एक्यूज्ड डाइड। क्या कोई पॉजिटिव एक्ट है एक्यूज के साइड से, जेलर के साइड से? नहीं। तो है क्या ये? इलीगल ओमिशन है। तो एक्ट डज नॉट ओनली मीन फिजिकल एक्ट, इट आल्सो इंक्लूड इलीगल ओमिशन। ये समझ में आता है। फिर कहता है एक्ट आल्सो इंक्लूड वर्ड स्पोकन। वर्ड स्पोकन, इसका क्या मतलब? अब ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, जैसे मान लो somebody is severe heart patient, दिल की बीमारी, बहुत गंभीर दिल की बीमारी है, और डॉक्टर एकदम सलाह दी है आपको कि नहीं कोई भी सीरियस चीज इनसे डिस्कस नहीं करना है, या कोई भी इंसिडेंट घर में होता है डिस्कस नहीं करना है कि नहीं, और आपके घर का पड़ोसी है, काफी उससे दुश्मनी चलती है, तो वो बेसिकली कभी कभी सोचा उसका फायदा उठाते हैं। लेट्स सपोज somebody, उसी घर में कोई व्यक्ति मर जाता है या सीवियर इंजरी हो जाती है उसको इंसिडेंट के बाद, वो जानबूझ करके उस व्यक्ति के पास आता है और जानबूझ उस दुकान में कहता है कि फलाना व्यक्ति मर गया, knowing that this person is suffering from severe heart disease, है कि नहीं?
तो यहाँ पर आप देखें कोई एक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ आप वो वर्ड बोले उसी से। इसी तरीके का बहुत एक्ट आता है जब अबेटमेंट ऑफ सुसाइड करोगे, खास करके जो वुमेन को मेंटल एट्रोसिटीज, मेंटल क्रुएल्टी फेस करनी पड़ती है, वहां देखते हो कोई एक्ट नहीं होता है, कोई वॉयलेंस नहीं होता है, लेकिन मेंटली हरास किया जाता है कि नहीं? उस कारण से सुसाइड करते, उस कारण से डेथ होता है। तो यहाँ पर एक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स वर्ड स्पोकन, नॉट ओनली फिजिकल एक्ट बट वर्ड स्पोकन। अब तीसरा जो एक्ट के कैटेगरी में है, और हम लोग ये चीज पहले डिस्कस कर चुके हैं, कल भी डिस्कस कर रहे थे। ये केस पलानी गोल्डमन का केस है, बहुत पुराना केस था। आई थिंक डिसीजन उस समय गलत था, अब धीरे धीरे उसको रिफॉर्म किया गया, यानी बदला गया। इस इंटरेस्टिंग केस में हमने क्या देखा कि देयर वाज सम अल्टरकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड कुछ घर में जो कोई भी एक पर्टिकुलर ये रखा हुआ था कोई ऑब्जेक्ट, उससे वाइफ को सिर पर मारता है और सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस स्टेट में वाइफ गिर जाती है। हस्बैंड को लगता है वो मर गई है, अपने आप को बचाने के लिए वो ऐसा पूरा सिचुएशन क्रिएट करता है ताकि वो सुसाइड करे, तो वो रस्सी के फंदे से बांध करके उसको पंखे पर लटका देता है। ठीक, ये सारा एक्ट होता है। ये सब केस पढ़ोगे आप तो इंटरेस्टिंगली लॉयर्स क्या दिमाग लगाते हैं इसमें, कह रहे हैं कि सर दो अलग अलग एक्ट, एक्ट नंबर 1 एंड एक्ट नंबर 2। एक्ट नंबर 1 मीन्स पहला एक्ट जहां कह रहे हो कि सर देयर वाज इंटेंशन टू कॉज डेथ, चलो मानते हैं इंटेंशन टू कॉज डेथ, तो इंटेंशन था, लेकिन क्या एक्टस हुआ, डेथ हुआ? क्योंकि मर्डर के लिए या कल्पेबल होमिसाइड कहने के, कल्पेबल होमिसाइड के लिए डेथ होना जरूरी है, क्योंकि वहां लिखा हुआ हुएवर काउजेस डेथ, जब तक डेथ नहीं होगा ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। लॉयर कहते हैं कि नहीं सर, पहले वाले केस में इंटेंशन था यानी मेंस रिया था, लेकिन एक्टस रियस नहीं था पहले वाले में, तो एक्टस रियस था ही नहीं, तो हमको कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर के लिए नहीं केस किया जा सकता। दूसरे वाले में एक्ट जरूर था, एक्टस रियस यानी कि जो गले किसी को फंदे में बांध करके पंखा पर लटकाओगे, अल्टीमेटली एक्टस रियस तो है, लेकिन वहां पर डिजायर क्या था, वहां पर इंटेंशन क्या था? लॉयर कहता है कि नहीं सर, इंटेंशन वाज टू कॉज डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंसेस, टू मेक इट लुक लाइक अ सुसाइड, ये बेसिकली डिजायर था। तो दो सेपरेट एक्ट वो लोग कर रहे थे कि पहले एक्ट में ये हुआ, दूसरे एक्ट में ये हुआ। इसका रिजल्ट क्या होता है कि उस केस में कोर्ट 326 में पनिश करती है, प्रीवियस सर, ना तो 299 यानी 304 में पनिश करती है और ना ही 302 में पनिश करती है। क्यों? क्योंकि कोर्ट हैज ट्रीटेड बोथ द एक्ट डिफरेंटली। ऐसा बहुत दिन चला, ऐसे 2-3 केस आपको देखेंगे जो आपको जिसमें कोर्ट ने कहा कि नहीं बोथ आर डिफरेंट एक्ट, है ना। नॉलेज मेंशन की तो बात में करेंगे, लेकिन कोर्ट ने कहा बोथ आर डिफरेंट एक्ट। लेकिन इस गलती को, जो प्रीवियस काउंसिल की गलती है, बाद में चल के सुधार लिया गया। एंड द कोर्ट सेड, अभी रिसेंटली पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है 2016 का, राजन वर्सेस स्टेट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे जहां पर किसी ने किसी के सिर पर मारा, उसको लगा कि वो मर गया, और वो क्या करता है कि बंद करके घर को आग लगा देता है। तो ऐसे बहुत सारे इस टाइप के केस मिलेंगे। तो कोर्ट क्या कहती है नाउ? कोर्ट कहती है कि बोथ द एक्ट्स आर नॉट डिफरेंट बट कॉन्स्टिट्यूट द सेम ट्रांजैक्शन, ये पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, एंड इट इज नॉट सिंगल डिफरेंट एक्ट बट सीरीज ऑफ एक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेक्शन 299 में हम एक्ट पढ़ते हैं, इट ऑल्सो इंक्लूड्स सीरीज ऑफ एक्ट, इट ऑल्सो इंक्लूड सीरीज ऑफ एक्ट। क्लियर है? तो अब वो जो सेक्शन में एक्ट लिखा हुआ है, एक्ट का इंटरप्रिटेशन क्या क्या समझ रहे हैं हम लोग? एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन, एक्ट इंक्लूड्स वर्ड स्पोकन, एंड एक्ट इंक्लूड्स सीरीज ऑफ एक्ट। ठीक, इतना समझ में आ गया? यहां तक जो हम लोग पढ़े हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है? सेक्शन 299 का जो एक्टस रियस वाला पार्ट है, वहां तक किसी को डाउट? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? आगे बढ़े फिर।
साक्षी। यस सर। सर ये जो आप बता रहे थे प्राइमरी और सेकेंडरी कॉज वाला, तो सर जैसे कि अगर ऐसा हो जाए कि किसी को किसी ने गोली मारी हो और जैसे एब्डोमेन में मारी हो और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो बहुत मतलब उसका जो एम्बुलेंस है उसका बहुत ब्रूटली एक्सीडेंट हुआ हो, और सर वहां पे तो मतलब कुछ पता ही नहीं चला कि किस रीजन से हुआ, हो सकता था सर कि उसको सेव किया जा सकता हो और अगर वो टाइम पे पहुंच जाता तो, और सर उसका पोस्टमार्टम वगैरह कुछ भी नहीं हो पाता है क्योंकि वो बहुत बुरे तरीके से उसकी बॉडी जो है वो मतलब उसका पोस्टमार्टम के चांसेस नहीं रहते हैं तो सर उसमें क्या होगा वैसे अगर केस इतना इसमें अगर सर्कमस्टांसेस को ऐड किया जाए जहां पर ये पता ही नहीं है हमको कि व्हाट वाज द काउज ऑफ डेथ, तो हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि कॉजल कनेक्शन कैन नॉट बी मेड वंस वी डोंट नो, वेयर वी डोंट नो कि व्हाट इज द काउज ऑफ डेथ। जब हमको पता ही नहीं है तो पहली कैटेगरी में वो नहीं फॉल करेगा, क्योंकि वी डोंट नो द काउज ऑफ डेथ। जब काउज ऑफ डेथ अटैच कर सकते हैं तभी आप कह सकते हो, है ना। आप जो सर्कमस्टांसेस बता रहे हो तो ऑब्स्क्योर है जो काउज ऑफ डेथ आप बता रहे हो, ठीक है। यस 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 बबली। सर वो जो सोवा वर्सेस इम्पेरर वाला केस था, तो सर उसमें उसने डॉक्टर के पास नहीं जाने का उसका डेथ होता है, तो सर वो तो एक्सप्लेनेशन 2 में फॉल करेगा ना, रिसोर्टिंग टू प्रॉपर नहीं देख, एक्सप्लेनेशन 2 में वो सारे केसेस हैं जहां पर आप एक्सक्यूज ले सकते थे। अब जैसे मान लो कि नॉर्मल अगर सिंपल इंजरी है जहां पर आप डॉक्टर को दिखा सकते थे, इसलिए कह रहे हैं दोनों में थिन लाइन डिफरेंस है। वहां पर कोर्ट ये या एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि बस ये प्ली लेने नहीं देंगे आपको कि बेटर मेडिकल फैसिलिटी दी जा सकती। इस केस में वो मेडिकल फैसिलिटी लेने ही नहीं गया, वो कहा कि नहीं हम मस्त है, मतलब मेडिकल फैसिलिटी आप ले सकते थे, वो लेने ही नहीं गया। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि मेडिकल फैसिलिटी को मिल रहा था लेकिन बेटर मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिला। यानी आप अगर मतलब मान लो कि मोतिहारी में दिखाए, लेकिन आप पटना में भी दिखा सकते थे, दिल्ली में भी दिखा सकते थे, इतना भी नहीं होता तो आप यूएस चले जाते दिखाने के लिए। ऐसे प्लीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाए, समझी बात? ओके सर, यस सर। ये ऐसा प्ली लेने अगर दे दिया जाए लोग, तो किनके पास कितना साधन है कि पटना दिखाए, दिल्ली दिखाए, किसी और कंट्री दिखाए। चलो ये समझ में आ गया। तो we are done with part 1 of 299, that is the actus reus part। चलो फिर से देख लेते हैं। This part we are done with whoever causes death by doing an act। आपको पता चल गया कि इस पार्ट में causal connection establish करना है, and causal connection direct और distinct होना चाहिए, remote indirect नहीं होना चाहिए। doing an act यानी एक्चुअली में डेथ होना चाहिए, doing an act होता है। एक्ट भी हम समझ लिए, एक्ट इंक्लूड्स इल्लीगल ओमिशन, एक्ट इंक्लूड्स वर्ड्स स्पोकन, एंड एक्ट इंक्लूड्स सीरीज ऑफ एक्ट्स। इतना तो क्लियर हो गया। तो एक्टस रिया वी आर डन विद, एक्टस रिया क्लियर है। नाउ अब हम लोग इंटर करने वाले हैं मेंस रिया के बाद में। मेंस रिया के बाद अब देखो यहाँ पर एकदम साइकोलॉजिकल गेम है, जिस तरीके से चीजों को प्रेजेंट किया गया है 299 में, और जो वर्ड्स एकदम केयरफुली यूज किए गए हैं, आपको केयरफुली एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में अप्लाई करना होगा, नहीं तो फिर एक से दूसरे में फॉल कर जाएगा, है कि नहीं। तो तीनों को देखते हैं हम कि तीनों में जो मेंस रिया है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है, स्टेट ऑफ माइंड है, वो स्टेट ऑफ माइंड तीनों में अलग अलग है कि तीनों में सेम है। सबसे पहला देखो, द वेरी फर्स्ट वन, नाउ द वेरी फर्स्ट सेज, इसको डिलीट कर दो। देखो पहला, विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग डेथ, विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग डेथ, मीनिंग देयर बाय इंटेंशन हम बता चुके हैं, फोर्सेबिलिटी तो है ही, with the intention मतलब हम क्या पढ़ेंगे, with the desire to cause that, with the desire to cause that। पहला तो कहता है कि डिजायर क्या है, what is the desire of the accused? The desire of accused is to cause that। आपको पहले दूसरा भी पढ़ना पड़ेगा, फिर हम दोनों को डिस्टिंग्विश और कंपेयर करके फिर अच्छे से समझेंगे। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कह रहा है कि with the intention of causing such injury, with the intention of causing such bodily injury, यहाँ bodily छिपा हुआ है,
with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death. यानी पहले में क्या इंटेंशन ही मेरा मारने का था, डिजायर ही मेरा मारने का था, तो आपको भी सर कैसे डिस्टिंग्विश करें इन दोनों में? पहला कह रहा है कि नहीं, इंटेंशन मारने का था, बॉडली इंजरी करने का नहीं था। अगर बॉडली इंजरी किया है उसने तो भी उससे इंटेंशन मारने का ही दिख रहा है। दूसरा, मारने का नहीं था सर इंटेंशन, इंटेंशन यानी डिजायर मारने का नहीं था, सिर्फ बॉडली इंजरी करने का। बॉडली इंजरी में हर्ट हो सकता है, ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, और वो जो बॉडली इंजरी कर रहा है उस बॉडली इंजरी से we can say that bodily injury was such that it is likely to cause death. देखो अब यहाँ पर क्या nuances है इन चीजों की। पहला तो बहुत क्लियर है, पहला स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है मर्डर, क्योंकि जो सेक्शन 299 क्लाउज 1 क्लाउज तो है नहीं, क्लाउज तो हम धीरे धीरे अटैच करती है क्योंकि पढ़ने में सहूलियत हो, रेफर करने में सहूलियत हो। तो पहला जो आप देख रहे हो 299 का फर्स्ट क्लाउज जो कि कल्पेबल होमिसाइड का पार्ट है, सेम यूज किया गया है सेक्शन 300 के पार्ट 1 में, क्लाउज 1। तो जो 299 क्लाउज 1 है वही 300 क्लाउज 1 है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपली लिखा हुआ है विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग डेथ, यानी डिजायर एक्यूज्ड का डेथ करने का। अब आप कहोगे सर इंटेंशन तो स्टेट ऑफ माइंड है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है, how will you infer, how will you decipher that intention was not to cause simply bodily injury but to cause death? अब कैसा केस आएगा? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मर्डर का जो केस दिखता है आपको, जहां पर दिख जाएगा आपको कि डिजायर उसका मारने का ही था, वो पहले क्लॉज में फॉल कर जाएगा। आपको ऐसे कौन कौन से केस है सर, कुछ एग्जांपल बताइए। तो एग्जांपल जो है आप देखते हो रिवॉल्वर में यूज करते हैं। अब ये कैसे इन्फर करोगे, ये सब डिपेंड करेगा बहुत चीजों पर। अभी हम पहले बता देते हैं किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, फिर हम लोग केस बाय केस डिस्कस करेंगे। अब इंटेंशन रेफर करने के लिए 2-3 चीज जरूरी है। इंजरी कितना सीवियर है, इंजरी जो इन्फ्लिक्ट हुआ है कितना सीरियस है, फिर इंजरी बॉडी के किस पार्ट में इन्फ्लिक्ट किया गया, किस पार्ट में, मतलब सर अभी जब हम लोग ये जो केस पढ़ रहे हैं ये 2 तरीके से पढ़ रहे हैं। पार्ट मींस पोर्शन ऑफ बॉडी मींस वाइटल ऑर्गन, नॉन वाइटल। क्या इंजरी सर वाइटल ऑर्गन में किया गया है, यानी कि अगर मान लीजिए सर कि आप कह रहे हो कि इसमें हम देखेंगे डिस्टिंक्शन, अगर किसी के पेट में चाकू घोंपते हैं और किसी का गला हम उसी चाकू से काट देते हैं, तो उसमें क्या इंटेंशन, कहां पर क्या दिखेगा? तो इंटेंशन रिफ्लेक्ट करने क्या बोले हम, इंजरी देखो आप, किस बॉडी पर इंजरी इन्फ्लिक्ट किया गया है वो देखो आप, और तीसरा ऑब्जेक्ट या वेपन, कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा वेपन यूज किया गया, क्योंकि एक्यूज तो आगे बताएगा नहीं कि सर मेरा इंटेंशन मारने का ही था, वो तो आएगा कि नहीं सर वो तो पता ही, वो तो बार-बार यही कहेगा। तो हाउ विल यू ड्रॉ इन्फरेंस ऑफ इंटेंशन इन डिजायर ऑफ द एक्यूज्ड बाय ऑल दीज 3 थिंग? इंजरी सीरियस है, नॉर्मल है, कैसा है, किस बॉडी पोर्शन पर इन्फ्लिक्ट किया गया, एंड थर्ड कौन सा ऑब्जेक्ट यूज किया गया। अब जैसे मान लो किसी के सिर पर एक लाठी, मान लो जो जैसे वो बम्बू स्टिक होता है जिसको बांस कहते हैं, उससे किसी के सर पर मारा जाता है, फिर हम क्या करते हैं, उसी एक्यूज के सिर पर किसी आयरन रड से किसी को मारा जाता है, और उसी आयरन रड से मान लो किसी और बॉडी पोर्शन पर, पैर में या पीठ पर मारा जाता है। तो आप ये दोनों जो एग्जांपल देख रहे हो, किसी बम्बू स्टिक से अगर किसी के सिर पर मारा जाए और किसी आयरन रड से किसी के सिर में मारा जाए, इन दोनों में क्या डिस्टिंक्शन समझ में आता है आपको, क्या इन्फ्लुएंस ड्रॉ करोगे? ये दोनों एग्जांपल अगर आपके सामने हो तो क्या इन्फ्लुएंस हम ड्रॉ करें? सर ऑब्जेक्ट देखेंगे, सर ऑब्जेक्ट वेपन कौन सा यूज हुआ है, और फिर बॉडी पार्ट देखेंगे, बॉडी पार्ट तो दोनों में सेम ही है। ऑब्जेक्ट तो हम देख ही रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या यूज हुआ है, बॉडी पार्ट हेड पे स्ट्राइक किया गया तो देख ही रहे हैं, तो क्या इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर सकते हैं? डिजायर सर जो आयरन रॉड से मार रहा है वो ऑल प्रोबेबिलिटी में उसको डेथ कॉज करना चाहता था, यानी बांस से जो मार रहा है उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है डेथ का उसको मिलकर, यस ये देखोगे आप। अब वही समझो कि
जनरली लोग पिस्टल यूज करते हैं। अब जितना देखो गैंग वॉर होता है, दिल्ली में रिसेंट इंसिडेंट हुआ था जहां पर कोर्ट में, यानी कोर्ट प्रीमाइस में, इवन कोर्ट में जहां प्रोसीडिंग चल रही थी, वहां पर रिवॉल्वर से वो 2-4 एक्यूज्ड को मार देता है। व्हेन यू आर यूजिंग पिस्टल और यूजिंग पिस्टल हिटिंग द एक्यूज्ड ऑन द वाइटल पार्ट्स, सिर पर मार रहा है, गले पर मार रहा है, तो उससे बहुत क्लियर आपको डिजायर दिखेगा, द डिजायर वाज टू कॉज दैट। वहीं पैर पर मार रहा है, थाई पे मार रहा है, तो डिजायर इज क्वाइट क्लियर दैट इंटेंशन, यानी द एक्ट डज नॉट ट्रांसफर दैट डिजायर ऑफ एक्यूज्ड वाज टू कॉज दैट। ये सारा चीज अभी जितना पढ़ेंगे हम लोग 299 में, 300 में, ये सबको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो पहला जो केस होगा इंटेंशन ऑफ काउजिंग डेथ, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड केस वेयर एक्यूज्ड डिजायर टू कॉज, मारना ही चाहता था। तो आप जब केस देखते हो कि सर किसी के दूध में पॉइजन मिला दिया था, दैट पॉइजन वाज क्वाइट डेडली, डिजायर दिखेगा। आप देखो पिस्टल से एकदम क्लोज रेंज से किसी के सिर में गोली मारता है, वाइटल पार्ट पर गोली मारता है, क्लियर इंटेंशन कॉज डेथ। फिर मान लो किसी के घर में, जैसे ऐसा बहुत सारे केस आता है कि किसी घर में या किसी बच्चे को बांध करके उस पर पेट्रोल या केरोसिन छिड़क करके आग लगा देता है। Clear desire is reflecting from the act that intention of the accused was to cause death. तो जब भी आपको सर्टेनिटी दिखेगी कि डेथ तो होना ही है, थोड़ा भी हम ये नहीं कहेंगे सर प्रोबेबल है, डेथ होना ही है, सर्टेनिटी है, तो पहले में फॉल करेगा। मीनिंग thereby whenever the act of accused falls under 299 clause 1, जहां हम कहेंगे desire was to cause death, तो आप कहोगे कि सर ये पहले में फॉल करेगा, इंटेंशन टू कॉज डेथ, और इसके लिए पनिशमेंट 302। इसको हाईएस्ट डिग्री कहते हैं, दिस इज हाईएस्ट डिग्री ऑफ पेंशन। समझ रहे हो बात? इंटेंशन वाज टू कॉज डेथ, तो अगर एक पहले में फॉल किया 302 में पनिशमेंट उसको मिलेगा। बहुत सारे केस लॉ थे, अब केस लॉ बेसिकली हम समझा दिए हैं। वो बहुत क्रोसिन वाला एग्जांपल था उसमें, क्लोज रेंज से डिस्टेंस से मारने का एग्जांपल था इसमें, और भी बहुत सारे एग्जांपल थे, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो ठीक है, तो पहला क्लॉज एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहां पर एक्यूज का डिजायर क्लियर दिख रहा है कि डिजायर वाज टू कॉज। अब नाउ कम टू द सेक्शन अगेन। यस, देख, तो लॉर्ड मैकॉले इंटेंशन को भी डाइसेक्ट करते हैं। इंटेंशन का क्लियर मतलब समझ चुके हैं, इट इज द मीनिंग ऑफ डिजायर, डिजायर होता है। अब इंटेंशन इंटेंस भी हो सकता है, यानी हाईएस्ट डिग्री का भी हो सकता है, इंटेंशन लेसर डिग्री का भी हो सकता है। तो यहां पर जो डिजायर था, डिजायर डेथ करने का था, तो वहां तो क्लियर केस, इसमें कहीं कठिनाई नहीं होगी आपको, एकदम क्लियर केस। जितना भी गन शॉट से डेथ होता है, स्ट्रैंगुलेशन से होता है, एकदम क्लियर केस जहां पर आपको मिलेगा, इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो पहला तो इंटेंशन यानी इंटेंस डिजायर, दूसरा कंपैरेटिवली लेस डिजायर। दूसरा जो केस आ रहा है उसमें इंटेंशन डेथ करने का नहीं है, इंटेंशन वाज नॉट टू कॉज डेथ। करने का क्या है? इंटेंशन इन डिजायर वाज टू कॉज बॉडीली इंजरी,
desire was to cause bodily injury as is likely to cause. ठीक, आपको वैसे कैसे कैसे एग्जांपल इसमें आएंगे, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है इसमें। देखिए इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, दिस एक्यूज्ड केम टू असॉल्ट दिस डिसीज को मारने आया था। जब देखता है कि एक्यूज असॉल्ट कर रहा है डिसीज को, तो फिर ये इसका जो भाई है घर से निकल के आता है, इंटरवेन करता है, और जब ये देखता है कि ये दोनों से घिर चुका है, एक्यूज्ड जो नाइफ रखा हुआ था, ही पिक्ड अप हिज नाइफ एंड स्टैब वन ऑफ देम। उस इंटरवेनर को जो बीच में से उसको बचाने आया था, उसको स्टैब करता है। और स्टैब कहाँ किया गया है? द नाइफ पियर्स द अपर पोर्शन ऑफ लेफ्ट थाई के ऊपर में स्टैब करता है, जिससे उसमें एक ब्लड वेसल भी कट जाता है और उस कारण से उसकी डेथ होती है। तो इस ऐसे सर्कमस्टांसेस जब आ रहे हैं जहां पर एक्यूज ने थाई पोर्शन पर स्टैब किया है डिसीज, तो वहां पर इस एक्ट से कैन वी से दैट डिजायर वाज टू कॉज डेथ? क्या इससे डिजायर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि डिजायर मारने का ही था? एनीवन? नो सर। नो सर। हाँ कौन कर रहा है, पहले ये बताओ, क्यों ऐसा लग रहा है कि डिजायर मारने का ही? यस देवांशु। सर आई थिंक उसका डिजायर था, क्योंकि जैसा वो था कि वो स्टैब किया था, इस हिसाब से तो हम लोग मतलब ये इन्फर कर सकते हैं कि वो स्टैब करने का जो फोर्स था वो बहुत इंटेंस था, तो इस वजह से हम लोग ये शायद डिराइव कर सकते हैं कि वो उसका डिजायर था। क्या ये पूरे सर्टेनिटी के साथ कहेंगे कि वो जो स्टैब किया गया, अगर इस पोर्शन पर स्टैब करते हो तो डेथ सर्टेन है? ऐसा मतलब सर्टेन हमेशा नहीं होता है, बट देन यहाँ पे जैसे बोला गया था कि वो लेफ्ट साइड में स्टार्ट किया था और उसका जो ब्लड वेसल था वो भी स्टार्ट किया था, तो हम लोग प्रेफर कर सकते हैं कि बहुत फोर्सफुली किया गया था, तो इस वजह से। ठीक फाइन। एनीथिंग एल्स? कोई और कुछ किसी को कुछ कहना है? देखो ऐसे जब केसेस आते हैं स्टैबिंग के या ऐसे और भी सिमिलर केसेस आते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट, यू कैन नॉट विद सर्टेनिटी यू कैन से दैट डिजायर वाज टू कॉज डेथ। क्या डिजायर था? डिजायर वाज टू कॉज इंजरी ओनली, और इंजरी हो सकता है डेंजरस इंजरी करने का क्या कहते हैं डिजायर था। तो इंटेंशन माइट बी टू कॉज इंजरी बट इट वाज नॉट टू कॉज डेथ। उस लेवल की सर्टेनिटी नहीं थी, यानी हम डिग्री में इसको मापें तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ सर्टेनिटी वेयर वी कैन से दैट इंटेंशन यानी डिजायर ऑफ एक्यूज वाज टू कॉज डेथ, वो इसमें दिख रहा है। इसमें क्या दिख रहा है कि इंटेंशन इंजरी कॉज करने का था, लेकिन इतना ही काफी है क्या? इफ यू रीड दिस सेक्शन, इट सेज, ये कहता है कि इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। इंटेंशन बॉडली इंजरी करने का, तो इस केस में हमको दिख रहा है कि इंटेंशन बॉडली इंजरी करने का। कहता है कि ऐसा बॉडली इंजरी किया जा रहा है जिससे डेथ इज लाइकली। अब ये जो वर्ड है लाइकली, इसमें ये नहीं लिखा है डेथ इज सर्टेन, ऐसा लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ। अगर डेथ इज सर्टेन लिख दिया होता तो पहले और दूसरे में डिस्टिंक्शन नहीं हम कर पाते, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। यहाँ पर वर्ड लाइकली यूज किया गया है। अब आप सोचो कि वर्ड लाइकली हम आईपीसी में और भी जगह देखते हैं, आपको क्या लग रहा है कि ऑर्डिनरी मीनिंग लाइकली का क्या होता है? What is the meaning, ordinary meaning of likely? Likely to cause death. Anyone? In most circumstances. Sorry? In most circumstances. यानी most probable cases. Yes. ऐसा कहना चाहिए. Anyone else? लाइकली का क्या इंफरेंस ड्रॉ करें? ओनली कि सर हो सकता है
थोड़ा मोड़ा संभावना है, अगर क्वांटिफाई तो नहीं कर सकते कि सर हाँ 25% चांसेस है, हो सकता है इसमें मर्डर मतलब डेथ हो जाए। तो सर आई थिंक उसको स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करना चाहिए कि इन ऑल प्रोबेबिलिटीज वो लाइकली है कॉज करने का डेथ। अच्छा, तो लाइकली का ऑर्डिनरी मीनिंग भी यही होता है क्या कि ऑन ऑल नहीं प्रोबेबल सर, केस इट इज सर्टेन? लाइकली मतलब तो जनरल होता है, उसी सेंस में हमको इंटरप्रेट भी करना है। मे बी नॉट। करेक्ट, इसी सेंस में ही हमको इंटरप्रेट भी करना है। नाउ सी कि हाउ सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड द वर्ड लाइकली। नाउ कोर्ट सेड कि likely here means probable, not mere possibility but probable. Probable is there is, उसको चांस नहीं चाहिए, प्रोबेबिलिटी है उसमें, ठीक है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं हमको इक्वेट नहीं करना है मोस्ट प्रोबेबल से। अब कहोगे ये सारा वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि ये सारा वर्ड इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबल डेथ होना एक चीज है, डेथ का होना मोस्ट प्रोबेबल दूसरी चीज है। यानी मोस्ट प्रोबेबल जो हम कह रहे हैं तो डिग्री इज हाई, डेथ होने की डिग्री ज्यादा है, मोस्ट प्रोबेबल कह रहे हैं। और जब हम कह रहे हैं कि ओनली प्रोबेबल, तो प्रोबेबिलिटी है लेकिन इट इज नॉट मोस्ट प्रोबेबल बट प्रोबेबल, है ना। इसको ऐसा नहीं कहेंगे कि हम इन ऑल सर्कमस्टांसेस इट विल रिजल्ट इनटू डेथ, ये नहीं कहेंगे। प्रोबेबिलिटी है, इट इज नॉट मियर पॉसिबिलिटी बट प्रोबेबिलिटी, चांसेस है यानी पॉसिबिलिटी है कि डेथ हो, लेकिन इन ये नहीं कहेंगे कि इन ऑल पॉसिबल केस डेथ होगी ही, प्रोबेबिलिटी है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर अगर सिंपली जो इंजरी करते हैं डेथ हो सकता है, तो ये जो वर्ड लाइकली है इसको हमको ऑब्जेक्टिवली देखना है। पहला वर्ड था वो तो हम देख ली कि विद द इंटेंशन टू कॉज इंजरी, तो इंटेंशन टू कॉज इंजरी तो बहुत सारे केस आएंगे, स्टैब करने का आएगा, सिर पर अगर मान लो कि बम्बू स्टिक से मारने का एग्जांपल आएगा, आयरन रॉड से मारने का एग्जांपल आएगा, बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। तो इंटेंशन तो हम वहां देख लेंगे कि इंटेंशन क्या था, इंटेंशन था मारने का या इंटेंशन था सिर्फ इंजरी कॉज करने का। लाइकली टू कॉज डेथ कोर्ट ऑब्जेक्टिवली देखेगी, ऑब्जेक्टिवली मतलब कि एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में जैसे इंजरी कॉज किया गया है, क्या डेथ हो सकता था उसमें, जैसे इस केस में डेथ हुआ है, तो जिस तरीके से स्टैब किया गया है, इंजरी करने का इंटेंशन दिख रहा है, मारने का इंटेंशन नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर उस इंजरी को ऑब्जेक्टिवली हम अगर एनालाइज करें, एग्जामिन करें, वी कैन से दैट द इंजरी कॉज इज लाइकली टू कॉज डेथ। जैसे इंजरी किया गया है और जिस तरीके से इंजरी किया गया है, वी कैन से जो इंजरी कॉज किया गया उससे डेथ प्रोबेबल है, नॉट मोस्ट प्रोबेबल बट प्रोबेबल है। अभी ये डिस्टिंक्शन इसलिए रखेंगे क्योंकि जब हम सेक्शन 300 पढ़ेंगे तो डिस्टिंक्शन समझ में आएगा कि वेदर इट इज प्रोबेबल और मोस्ट प्रोबेबल, और यही वर्ड लाइकली 299 और 300 में डिस्टिंक्शन हमको बताएंगे, ठीक है। तो पहले और दूसरे में जो हम लोग क्लाउज पढ़े हैं उसमें पहला है इंटेंशन टू कॉज डेथ, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड केस ऑफ मर्डर, जहां पर इंटेंशन डिजायर है कि उसका मारने का दिख रहा है, तो वो सारा एग्जांपल हम लोग देखें। दूसरा इंटेंशन मारने का नहीं है, इंटेंशन इंजरी करने का। आप कह सकते हो कि ग्रीवियस इंजरी सर, डेंजरस इंजरी करने का है, लेकिन उसका इंटेंशन मारने का नहीं था। तो जब हम बेसिकली इंजरी इन्फ्लिक्ट करता है कोई एक्यूज, तो इंजरी दिख रहा है कि वो इंजरी इन्फ्लिक्ट करना चाहता है, हमको देखना है कि वो इंजरी क्या डेथ की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, वो देखना है। ये दोनों चीज वो देखना है, ठीक है। इसी तरीके से एक इंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू का केस था। व्हाट हैपेंड इन दिस केस, एक्यूज्ड गेव ब्लो, लाठी ब्लो, यानी लाठी से सिर पर मारता है। वन ऑफ द इंजरी प्रूव टू बी फैटल। जनरली धीरे धीरे एक्यूज्ड ये डिजीज हेमरेज डेवलप करता है और उस कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है। एक्स्ट्रा ड्यूअल हेमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर हिट, और कुछ वीक के बाद उसकी डेथ। इस केस में भी जिस तरीके की इंजरी इन्फ्लिक्ट की गई है, वी कैन नॉट से इन ऑल प्रोबेबल केस दैट डिजायर वाज टू कॉज डेथ, क्योंकि ये सर्टेनिटी नहीं है कि डेथ होगा ही। लेकिन इस केस में ये बोल सकते हैं कि आप जब सिर पर मार रहे हो तो इतना कहा सकता है कि द डिजायर वाज टू कॉज इंजरी ऑल्दो डेंजरस इंजरी, और इंजरी इस तरीके का था दैट इज लाइकली टू कॉज।
ठीक है ना। तो आज हम लोग को इन दोनों में डिस्टिंक्शन करके समझना है क्लाउज 1 एंड क्लाउज 2। पहला क्लाउज क्लियर केस इंटेंशन टू कॉज डेथ, दूसरा इंटेंशन वाज टू कॉज इंजरी ओनली, जो अगर हम उसको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें हम कह सकते हैं कि डेथ इज लाइकली टू बी कॉज्ड, यानी प्रोबेबिलिटी है डेथ होने की। तो दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लाउज 1 एंड क्लाउज 2। कुछ कंफ्यूजन है इसमें? एनी डाउट? अभी जब तीसरा क्लॉज पढ़ेंगे तो ग्रेजुअली ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे जहां आपको देखना है कि इंजरी कहां पर हो रही है, किस सर्कमस्टांसेस में हो रही है। ये सब सर्कमस्टांसेस एनालाइज करेंगे तो वी विल इन अ सिचुएशन टू डिस्टिंग्विश द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस फ्रॉम वन टू वन। ठीक है, कुछ पूछना है? एनीथिंग एल्स? आज हम लोग को यहीं तक रखना है। वी विल डिस्कस एक्सप्लेनेशन एज वेल एज द अदर सेक्शन इन द नेक्स्ट क्लास। Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you.